ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡੇ ਆਫ ਵਾਰ ਔਰਫਨਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੁਆਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਫੈਕਟ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮਾਈ ਟੀਅਰਸ ਵਿਦ ਰਾਜੀਵ, ਟਰੰਪ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਮਾਈ ਟੀਅਰਸ ਵਿਦ ਰਾਜੀਵ, ਟਰੰਪ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪਾਲਿਸੀ 2020। ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ NCERT ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲਿਸ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲਿਸ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੈਮੂਰ ਰੈਡਜਾਬੋਵ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਚੈਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਅਰ ਥਿੰਗਸ ਮਾਸਟਰ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਗਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 5.4% ਰਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5.2% ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੂਫਟੌਪ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮ ਵਿਨੇ ਸਾਹੀ। ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਆਫ USA ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦਾ। ਓਨਲੀ ਵੂਮਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ USA ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਿਕ ਹਾਮਿਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਡਰੋਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਹੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਹੈਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਰਨ ਬਾਜਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
प्रमोशन दी गई है, चीफ ऑफ एशिया पैसिफिक क्लाउड डिवीजन बना दिते गए हैं। जिस ये गूगल इंडिया के हैड सीगे, गूगल क्लाउड इंडिया के, तो इन्हों गूगल क्लाउड का पैसिफिक हैड अपॉइंट कर दिता गया, पैसिफिक एशियन हैड। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इन्हों द्वारा इनोग्रेट किया गया अपने तरीके का पहला माइग्रेंट वर्कर सैल। डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइग्रेंट वर्कर सैल किन्ना द्वारा इनोग्रेट किया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। दूसरा क्वेश्चन कित्थे किया गया, तो सूरत गुजरात दे विच, सूरत गुजरात दे विच। वियतनाम, वियतनाम कैपिटल हनोई है, करंसी डोंग चलती है। इस द्वारा इंडिया के नाल राइस के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया, राइस के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। इस तो इलावा जिन्हें भी क्वेश्चन राइस रिलेटेड बन सकते सी आप कल डिस्कस कर ले सी, याद रखेंगे। यूके, यूके द्वारा टैंपून टैक्स है जिहड़ा अबॉलिश किया गया, अबॉलिश किया गया यूके द्वारा। ठीक है, इसी दे नाल आपां डिस्कस किया सी स्कॉटलैंड के बारे कि उन्होंने द्वारा पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने की किया सी जिहड़े टैंपोन वगैरह ने इन्हों फ्री दे विच डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया सी। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इन्होंने द्वारा इंडिया की विजिट को कैंसल किया गया ड्यू टू कोविड-19। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा अनाउंस किया गया कि जो 71 फॉर्मेशन डे है यूपी का 24 जनवरी को आ रहा है, 1950 के विच बनाया गया सी, तो लखनऊ और नोएडा के विच, लखनऊ और नोएडा के विच ऑब्जर्व किया जाएगा। ट्राईफाइड, ट्राईफाइड द्वारा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया ट्राईफूड पार्क बनाने के लिए। कित्थे बनाए जा रहे हैं, MP दे विच। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्राईफूड पार्क ट्राईफाइड द्वारा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नाल एग्रीमेंट साइन करके कित्थे बनाए जा रहे हैं, तो MP दे विच इसनूं बनाया जा रहा है। MP गौरमेंट द्वारा ही लॉन्च पैड स्कीम भी लॉन्च की गई सी, लॉन्च पैड स्कीम जिस दे अंडर की किया जाएगा कि जेडे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशनस दे विच बच्चे ने, कहने का मतलब जेडे ऑरफन बच्चे ने उन्होंने की किया जाएगा, स्पेस प्रोवाइड की जाएगी जो 18 साल की एज तो बाद स्टडी के नाल उन्होंने आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा, सैल्फ रिलायंट बनाया जाएगा MP गौरमेंट द्वारा बाय ओपनिंग ऑफ शॉप्स। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर EK पलानास्वामी द्वारा पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर की गई है थाईपुरम फेस्टिवल के लिए, थाईपुरम फेस्टिवल के लिए। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाएगा थाईपुरम फेस्टिवल किहड़ी स्टेट दे विच ऑब्जर्व किया जाता है, तो तमिलनाडु दे विच। हुबली रेलवे स्टेशन कित्थे है, तो करनाटका दे विच है। इसनूं दूसरा नाम की है, तो सिद्धारोधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, सिद्धारोधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अनाउंस किया गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन बन जाएगा जिसकी लेंथ होएगी 1505 मीटर और वर्थ होएगी 10 मीटर। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट जारी की गई साउथ एशिया जर्नल द्वारा जिस दे विच कहा गया कि चेन्नई इंडिया की जी चेन्नई है वह मैक्सीमम CCTV कवरेज करती है पर स्क्वेयर किलोमीटर अमंग 130 सिटीज़। ठीक है जी, चेन्नई कित्थे है, तमिलनाडु दे विच। नेक्स्ट है MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर दे विच लगाया गया, ओमकारेश्वर दे विच अनाउंस किया गया जिहड़ी कि पावर जनरेशन शुरू कर देगा 2022-23 तो। वेस्ट बंगाल गौरमेंट है जिहड़ी इन्हां द्वारा देश नायक दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा 23 जनवरी को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी बर्थ एनिवर्सरी आ रही है, याद रखेंगे 124वीं आ रही है। ठीक है, और 125वीं अगले साल है, जिस करके जिसनों ऑब्जर्व करने के लिए आप कमेटी भी डिस्कस की सी अमित शाह के रिलेटेड, अमित शाह उसके हैड अपॉइंट किए गए सी। 2022 दे विच आ रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी एनिवर्सरी, 125वीं एनिवर्सरी। इसी दे लई याद रखांगे 26 जनवरी जी रिपब्लिक डे परेड दे विच नेताजी की लाइफ के उत्ते टैबेलियो भी वेस्ट बंगाल सरकार बनवाएगी। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा इंडिया का पहला फायर पार्क कहांगे अपने तरीके का पहला लगाया गया भुवनेश्वर दे विच। और एक पोर्टल लॉन्च किया गया अग्निशमा सेवा उड़ीसा फायर सर्विस का।
असम गवर्नमेंट द्वारा फिशिंग के उत्ते बैन लगाया गया। दीपोर भील एक फ्रैश वाटर लेक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दीपोर भील फ्रैश वाटर लेक किहड़ी स्टेट दे विच है? तो असम दे विच है। दूसरा क्वेश्चन, इसनूं रामसर साइट कदों बनाया गया सी? तो 2002 दे विच। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा टोटल रामसर साइट्स कितनियां ने? तो 42 रामसर साइट्स ने इंडिया दे विच। अगर आप 2020 की गल करते हैं तो 2020 के काफ़ी ज़्यादा रामसर साइट्स इंक्रीज़ हुई ने। याद रखांगे आई थिंक अगर आप गल करते हैं 27 तो इंक्रीज़ हुई ने, तो 15 साइट्स इंक्रीज़ हुई ने 2020 के। वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रैस, वर्ल्ड की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रैस बदलपुर असम के शुरू की गई है। तेलंगाना का बुरुगुवारी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स द्वारा जीरो वेस्ट सैनिटरी पैड्स बनाए गए, स्त्री रक्षा पैड्स। मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा एम पेंशन एप्लीकेशन लॉन्च की गई पेंशनर के लिए इंफाल दे विच, मणिपुर कैपिटल इंफाल दे विच। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन के फोक डांस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ओडिशा घुमारा फोक डांस और बाग डांस। इस तो इलावा ओडिसी डांस फॉर्म कितने का है? ओडिशा के विच। क्लासिकल डांस भी है ओडिसी, याद रखांगे। पंजाब भंगड़ा किकली झूमर और गिद्धा, भंगड़ा किकली झूमर और गिद्धा हर एक नूं पता होगा पंजाब बारे। था इस तो इलावा राजस्थान के विच घूमर डांस फॉर्म, झूमर पंजाब का है और घूमर राजस्थान। कालबेलिया भवाई काची और घोड़ी डांस फॉर्म कितने दे ने? राजस्थान के। सिक्किम के सिंगी चाम डांस फॉर्म कितने का है? सिक्किम का है। तमिलनाडु के कोलाकट्टम, कलांदी, कुम्मी, स्नेक डांस और भारतनाट्यम तमिलनाडु के। ठीक है जी, याद रखेंगे। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। फर्स्ट न्यूज़, कॉपी पेन लेके रेडी रहने। सब तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मराठी जर्नलिज्म डे। महाराष्ट्र द्वारा मराठी जर्नलिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पूछा भी गया। तो किस दिन ऑब्जर्व किया गया है? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को इसनों ऑब्जर्व किया गया मराठी जर्नलिज्म डे। बेसिकली इस दिन को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है थोड़ा डिटेल डिस्कस करांगे। इस तो इलावा आप डिस्कस किया 1 जनवरी DRDO डे, याद रखांगे। 4 जनवरी आप ब्रेल डे डिस्कस किया। ब्रेल लैंग्वेज बनाई गई सी लुइस ब्रेल द्वारा और इसनों बनाया गया सी 1824 दे विच। फ्रांस तो लुइस ब्रेल बिलोंग करते हैं, ये याद रखांगे। इस तो इलावा 3 जनवरी को सवित्रा बाई फूले इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई सी, ये भी याद रखांगे। तो यह दिन है जिहड़ा दिन है ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ये बाल शास्त्री जांबेकर एक परसन सी, बाल शास्त्री जांबेकर। इन्हों कमैमोरेट करने के लिए यह दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इन्हों द्वारा इसी दिन 6 जनवरी 1832 इन्हों द्वारा इसी दिन 1832 ईस्वी की किया गया सी? पहला मराठी लैंग्वेज दे विच न्यूज़पेपर शुरू किया गया सी जिसका नाम सी दर्पण। लास्ट ईयर भी ये चीज़ आप डिस्कस की थी कि 1832 दे विच दर्पण नाम का न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज दे विच पहला न्यूज़पेपर दर्पण लॉन्च किया गया सी, शुरू किया गया सी, जिस करके बाल शास्त्री जांबेकर नूं फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम नाल भी जानिया जाता है। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, याद रखेंगे। नैक्सट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी जिन्हों की रीसेंटली डैथ हो गई सी। आप डिस्कस किया होया भी कि इन्हों की डैथ हो गई सी। इन्हों की एक बुक रिलीज़ की गई है ऑटोबायोग्राफी। हुण अगर कहा जाए कि इन्हें तो डैथ हो गई सी तो इन्हों की बुक किवें लिखी गई? तो इन्हों की जी बुक सी इन्हों द्वारा पहले जी स्पीचिज सी रिसर्च सी इन्हों की उन्होंने कलैक्ट करके एक बुक बनाई गई है। बुक का नाम दिता गया द प्रेजिडेंशियल ईयर्स 2012 to 17। क्वेश्चन डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है द प्रेजिडेंशियल ईयर्स 2012 to 17 बुक किन्ना दी है? तो सिंपली याद रखांगे 2012 तो 17 के इंडिया के प्रेजिडेंट कौन से? प्रणब मुखर्जी से। क्वेश्चन पूछा गया कि किन्नवें नंबर के प्रेजिडेंट से? तो यह 13वें नंबर के प्रेजिडेंट से। इंडिया के 13th नंबर के प्रेजिडेंट कौन सी? प्रणब मुखर्जी। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं प्रणब मुखर्जी बारे तो प्रणब मुखर्जी
13वें नंबर ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 14th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 14th ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ठीक है जी नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन लॉस एंजलस USA पोस्टपोन्ड टू बी ड्यू टू COVID-19 बेसिकली ग्रैमी अवार्ड्स ने जिहड़े ग्रैमी अवार्ड्स हर साल दिते जाते हैं ठीक है सैरेमनी कित्थे ऑर्गेनाइज होंदी है तो लॉस एंजलस USA दे विच ठीक है जी हुण COVID-19 कारण इन्हां नूं पोस्टपोन किया गया ज़्यादा पोस्टपोन नहीं किया गया कहांगे कि 2 या 3 महीने के लिए इसमें पोस्टपोन किया गया तो अपने लिए सिंपली एडिशन इंपोर्टेंट बनेगा कि ये किन्नवा एडिशन है ग्रैमी अवार्ड का ग्रैमी अवार्ड का ये 63वां एडिशन है 63rd एडिशन जिस तरीके नाल अगर आप गल करते हैं ओस्कर्स का किन्नवा एडिशन है तो 93rd एडिशन ऑर्गेनाइज होना है ठीक है ओस्कर्स के लिए आप डिफरेंट इंडियन मूवीज़ का नाम डिस्कस किया होया कि किहड़ी मूवी नॉमिनेट की गई है तो इसी तरीके नाल इन्हां दे फील्ड पूछे जा सकते हैं कई बार क्वेश्चन नूं ईजी भी बनाया जाता है तो इन्हां दे फील्ड पूछ ले जाते हैं कि ओस्कर किस दे लई दिते जाते हैं ये मूवीज़ कैटेगरीज दे भी दिते जाते हैं ठीक है ग्रैमी किस दे अवार्ड है तो ग्रैमी म्यूजिक कैटेगरी का अवार्ड है ये याद रखांगे ग्रैमी म्यूजिक कैटेगरी का अवार्ड है ठीक है इसी तरीके नाल डिफरेंट अवार्ड्स होंदे ने फॉर एग्जांपल बाफ्टा कहांगे कि मूवीज़ दे अवार्ड है बाफ्टा अवार्ड्स ठीक है इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ओस्कर अवार्ड्स होर किस नाम नाल जाने जाते तो अकैडमी अवार्ड्स के नाल जाने जाता है ठीक है इंडिया के लिए किहड़ी मूवी नॉमिनेट की गई है तो मूवी सिंगल नॉमिनेट की गई है जलीकट्टू मूवी नूं नॉमिनेट किया गया है शॉर्ट फिल्म्स की गल करते तो नटखट और शेमलैस ये दोनों याद रखांगे नॉमिनेट की गई ने नेक्स्ट हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक India's 71-year test the journey to Trump in Australia बेसिकली तुसी अगर क्रिकेट दे विच थोड़ा इंटरस्ट है तो देखा होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज़ चल रही है ठीक है और इस दे विच फर्स्ट टेस्ट दे विच ऑस्ट्रेलिया द्वारा विकेट भी लै ली गई सी तो सब तो पहले इंडिया का 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया इसी दे उत्ते एक बुक लिखी गई है तो इस बुक नूं किन्ना ने लिखिया सी तो आर कौशिक इज़ द राइटर ठीक है इस अगर क्रिकेट के रिलेटेड गल करते हैं 2 इंपोर्टेंट न्यूज़ होर ने उन्होंने रिलेटेड भी डिस्कस करांगे तो इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया सिमिलर पहले तो बुक याद रखांगे आर कौशिक इस तो इलावा 2 इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस कर लेने पहले रजिंदर सच्चर और मानव कौर दी रजिंदर सच्चर का नाम आप इस करके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हुणे आपने एक ओबिचरी एक बुक डिस्कस की है किन्ना दे नाम के उत्ते अपने फॉर्मर प्रेजिडेंट के नाम से प्रणब मुखर्जी के नाम से सिमिलर तरीके नाल इन्हां दी भी ऑटोबायोग्राफी इन्हां दी डेथ तो बाद बनाई गई है कह सकते कि कलैक्शन किया गया इन्हां दा तो उस बुक का नाम सी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एक ही सीगे एक जज सीगे रजिंदर सच्चर जिन्हां रिलेटेड आप डिस्कस किया सी सच्चर कमेटी याद रखांगे रजिंदर सच्चर उसके हैड सीगे और इन परस्यूट ऑफ जस्टिस इन्हां दी बुक है सच्चर कमेटी किस दे नाल रिलेटेड है तो मुस्लिम कम्यूनिटी दे नाल रिलेटेड है याद रखांगे मानव कौल द्वारा अपना पहला नॉवल लिखा गया सी रीसेंटली अंतिमा नाम का नॉवल डायरैक्टली याद रखांगे किन्ना द्वारा लिखा गया मानव कौल द्वारा ठीक है बाकी 2 ऑप्शंस ने जिहड़े क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ दे विच ने डिस्कस कर लैने आ सब तो पहले क्लेयर पोलोसैक की ने एक एम्पायर ने ठीक है वूमेन ने और एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं क्लेयर पोलोसैक बिकम द फर्स्ट वूमेन मैच ऑफिशियल इन मेन्स टेस्ट when she takes up the 4th umpire role in Sydney cricket ground test between India and Australia कि मेन्स टेस्ट मैच दे विच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जिहड़ा मैच चल रहा है कित्थे चल रहा है SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड दे विच इस दे विच इन्हां ने 4th एम्पायर बने ने ये और पहले वूमेन मैच ऑफिशियल्स बने ने जिन्हां ने मेन्स टेस्ट दे विच हिस्सा लिया
ठीक है। और हालांकि अगर आप फोर्थ एंपायर की गल करते हैं तो ज़्यादा काम नहीं होंगे फोर्थ एंपायर का, लेकिन फिर भी न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी क्योंकि फर्स्ट वूमेन बने ने। इस तो इलावा एलन बर्गस का नाम एक लैजेंडरी क्रिकेटर से। अगर आप गल करेंगे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एलन बर्गस, जो कि न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं, इन्हों की डैथ हो गई है एट द एज ऑफ 100, 100 साल की उम्र तो बाद इन्हों की डैथ हुई है, इस करके थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड रहा नाम। उपरों वर्ल्ड के ओल्डेस्ट यानी कि सब तो ज़्यादा उम्र के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से एलन बर्गस। कि कंट्री पूछी जाएगी तो न्यूजीलैंड याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिहड़े ये कौन अपॉइंट किए गए हैं, किन्हों अपॉइंट किया गया तो शांतनु दयाल। फर्स्ट ऑप्शन शांतनु दयाल नूं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा ऑप्शंस की अगर आप गल करते हैं तो बिपिन रावत CDS ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन ने तो जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले आर्मी चीफ होंगे सी, इन्हों की रिटायरमेंट तो बाद इन्हों फर्स्ट CDS बनाया गया सी, क्योंकि CDS की पोस्ट नवी क्रिएट की गई सी, आप डिस्कस किया हुआ। इस तो इलावा सुबोध कुमार जायसवाल रिसेंटली आप इन्हों का नाम डिस्कस किया, आई थिंक 2 दिन पहले डिस्कस किया। कौन अपॉइंट किए गए CSSF के हेड सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स है जी, इसके हैड अपॉइंट किए गए सुबोध कुमार जायसवाल। इस तो इलावा अनूप कुमार गोस्वामी और ग्रेग क्लार्क, 2 ऑप्शंस न्यूज़ के विच डिस्कस करते हैं। तो अनूप कुमार गोस्वामी ने जिहड़े इन्हों चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का बाय गवर्नर बिशप भूषण हरिचंदन। ठीक है। बेसिकली इत्थे एक पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं कि जिहड़े हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे ने उन्हों के नाम आप बहुत ही रेयर चांस होंगे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। क्योंकि इन्हों की जी अपॉइंटमेंट कहांगे कि फ्रीकुएंटली चेंज होती रहती है। ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एज के अपॉइंटमेंट होंगी है और जल्दी ही इन्हों ट्रांसफर कर दिता जाता है या फिर इन्हों की रिटायरमेंट हो जाती है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट किन्नियां ने, 25 हाई कोर्ट्स ने। ये न्यूज़ आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जी ओथ होंगी है वो गवर्नर दवांदा है। क्वेश्चन ये स्टैटिक तौर पर पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के जज नूं ओथ कौन दवांदा है, चीफ जस्टिस दवांदा है, और चीफ जस्टिस नूं शपथ कौन दिलांदा है, तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंदा है उसनूं शपथ स्टेट का गवर्नर दिलांदा है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम याद रखांगे बिशप भूषण हरिचंदन। इस तो इलावा रिसेंटली जी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई सी हाई कोर्ट्स के इंपोर्टेंट रहनगियां। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना हाईकोर्ट, इत्थे रिवीजन कर लेने हल्की जी। तेलंगाना हाईकोर्ट के फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस बने ने हीमा कोहली, इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा हीमा कोहली, फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट के। सिमिलर तरीके नाल जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस से गीता मित्तल, उन्होंने रिप्लेस करके जोड़े बने ने उन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा तो पंकज मित्तल, गीता मित्तल, पंकज मित्तल, इस तरीके नाल याद रखांगे। तीसरा उड़ीसा हाईकोर्ट का इंपोर्टेंट रहेगा, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। ये क्यों इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जोड़े जज अपॉइंट किए गए हैं वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तो गए हैं, वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तो गए हैं। उन्होंने नाम है एस मुरलीधरन, इन्हों चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया उड़ीसा हाईकोर्ट का। नाम याद रखांगे, तीनों इंपोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है ग्रैग क्लार्क का नाम। ग्रैग क्लार्क ने जिहड़े इस साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते हैं, इन्हों अपॉइंट किया गया एनालिटिकल कोच ऑफ इंडियाज़ मैन हॉकी टीम टिल टोक्यो ओलंपिक्स तक इंडिया के मैन हॉकी टीम के लिए एनालिटिकल कोच किन्हों अपॉइंट किया गया साउथ अफ्रीका के ग्रैग क्लार्क। ठीक है। ताकि जोड़े टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं उन्होंने विच इंडियन हॉकी टीम की मैनस हॉकी टीम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है। इत्थे भी एक पुरानी न्यूज़ हल्की जी पुरानी डिस्कस कर लें कि रिसेंटली हॉकी की रैंकिंग्स अनाउंस की गई। हॉकी की रैंकिंग्स दे विच इंडियन मैनस टीम की रैंकिंग कितनी सी, 4थे नंबर पर सी, याद रखांगे। और टॉप किया सी बेल्जियम ने, किहड़ी कंट्री ने टॉप किया सी, बेल्जियम ने। इसी तरीके नाल वूमेंस हॉकी टीम दे विच
ਵੂਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੀ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਅ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਇਨ ਲਦਾਖ। ਲਦਾਖ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਰ ਕੇ ਮਾਥੁਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਕੇ ਮਾਥੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 400th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 400ਵੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 125ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। SS ਵੈਂਪਤੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਤੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ SS ਵੈਂਪਤੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਤੀ। ਅਰੁਣ ਸਿੰਘਲ ਬੇਸਿਕਲੀ FSSAI ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਨਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ of USD 646 million for 2 important projects in ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ADB ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ NDB ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਨ NDB ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਤਾਂ 646 ਮਿਲੀਅਨ NDB ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NDB ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ? 13th ਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ NDB ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ NDB ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਮਾਰਕੋਸ ਤਰਿਓਜ਼ੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ NDB ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ADB ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ NDB ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਔਰ IMF ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ 190ਵੀਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਂਡੋਰਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈੱਡ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਨੇ ਔਰ IMF ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜੋਰਜੀਵਾ ਨੇ। ADB ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੈਟਰੋ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ADB ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ADB ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਮਸਾਤਸੁਗੂ ਆਸਾਕਾਵਾ। AIIB ਦੇ ਵਿੱਚ 103 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੀजिंग ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ AIIB ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਿਮ ਲਿਕੁਇਨ। तो ये डिटेल डिस्कस कर लेने। हालांकि इन्नी डिटेल सिर्फ PPSC या PCS के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बनेगी। अगर तुम PCS या PPSC की तैयारी कर रहे हो सारी डिटेल ਤੁਹਾਡੇ लिए इंपोर्टेंट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल 646 मिलियन का लोन, 2 इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट, तो दोनों प्रोजेक्ट किस चीज़ के रिलेटेड ने? पहला प्रोजेक्ट है 1600 किलोमीटर रोड नू वाइडनिंग करना और हाईवेज नू डबल लाइन करना, कित्थे? आंध्र प्रदेश दी। ठीक है जी। इसी दे नाल स्टेट हाईवेज की गल हो रही है और जो दूसरा प्रोजेक्ट है रूरल कनैक्टिविटी के लिए। यह स्टेट हाईवेज और जी स्टेट हाईवेज की रोड्स ने उन्होंने इंप्रूव करने के लिए, और दूसरा है रूरल कनैक्टिविटी और डिस्ट्रिक्ट्स और रूरल के लिए, जिस 1400 किलोमीटर की रोड्स नू डबल लेन किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है न्यू रेवाड़ी मदर सेक्शन वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इनोग्रेटेड बाय। रेवाड़ी तो मदार जो सैक्शन है यह वर्ल्ड की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई जा रही है। इसके उत्ते इसनू इनोग्रेट किन्ना द्वारा किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा कल के दिन इसनू इनोग्रेट किया गया। वर्ल्ड की फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन रेवाड़ी और मदार सैक्शन के उत्ते। ठीक है। इत्थे एक पुरानी न्यूज़ भी इंटरलिंक करांगे, इंपोर्टेंट रहेगी। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसनू इनोग्रेट किया गया, याद रखांगे। वाराणसी यूपी तो लोक सभा MP ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पीयूष गोयल की डिस्कस कर लेने क्योंकि इन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा एज ए इस न्यूज़ रिलेटेड, क्योंकि यह रेलवे मिनिस्टर ने। रेलवे मिनिस्ट्री तो इलावा इन्हों के रिलेटेड कल भी डिस्कस किया अपने किहड़ी मिनिस्ट्री है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है। इस तो इलावा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री इन्होंने रीसेंटली, प्लस कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इन्हों रीसेंटली दी गई सी। राज्य सभा MP ने ये महाराष्ट्र तो। इस तो इलावा 2 होर इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, वो भी डिस्कस करांगे। पहले इस न्यूज़ में डिटेल से भी डिस्कस करते हैं कि न्यू रेवाड़ी मदार सैक्शन वर्ल्ड की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट की गई। रेवाड़ी है जिहड़ा ये हरियाणा दे विच है और मदार है जिहड़ा ये राजस्थान दे विच है, यानी कि हरियाणा नू राजस्थान दे नाल कनैक्ट किया गया। ठीक है। ऑफ 306 किलोमीटर ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरीडोर। इत्थों याद आया होगा सूँ एक पुरानी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। 1 मिनट पहले आ चीज़ डिस्कस कर लेंगे, इंपोर्टेंट रहेगी कि एक डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन भी चलाई जाएगी न्यू अटेली तो किशनगढ़ तक। हुण थोड़ी हल्की डिटेल डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगर आप गल करते हैं इंडिया है जिहड़ा, इंडिया अपना एक अगर गल करते हैं इस तरीके दे नाल है। ठीक है। इसी तरीके नाल इंडिया दे विच एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट नूं की कहा जाता है? इस प्रोजेक्ट नूं कहा जा रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटर। अगर किसी ने सुनिया होगा पहले, गोल्डन क्वाड्रिलेटर इस प्रोजेक्ट नूं कहा जा रहा है। ठीक है। इस दे विच बेसिकली 4 इंपोर्टेंट सिटीज़ नूं कनैक्ट किया जा रहा है। दिल्ली, ठीक है, इत्थे दिल्ली है। इस साइड महाराष्ट्र मुंबई है। अगर सब तो लास्ट से गल करते हैं तमिलनाडु का जिहड़ा चेन्नई है और इत्थे वेस्ट बंगाल का कोलकाता। ये 4 सिटीज़ नूं कनैक्ट किया जा रहा है पूरे इंडिया दे विच। तो इसनूं गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। हालांकि इसके लिए काफ़ी टाइम तो चल रही है डेवलपमेंट। इस दे विच जिहड़ी यह साइड है इसनूं की कहा जाता है? वैसटर्न कॉरीडोर कहा जाता है, वैसटर्न कॉरीडोर। और इसनूं की कहा जाता है? ईस्टर्न कॉरीडोर। तो सूँ रीसेंटली याद होएगा आप डिस्कस किया सी, आई थिंक लास्ट वीक ही डिस्कस किया सी कि खुर्जा भोपुर सैक्शन यूपी का ईस्टर्न कॉरीडोर का इनोग्रेट किया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। यूपी के विच इनोग्रेट किया सी। ठीक है। हुण जिहड़ा वैसटर्न कॉरीडोर का इत्थे किया गया राजस्थान और हरियाणा का। ठीक है जी, याद रखेंगे। आई होप तुहानूं समझ लग गई होगी, पूरी डिटेल आप डिस्कस कर ली है। इस तो इलावा रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा ही एक होर इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई कि झारखंड रांची के विच भी एक टनल प्रोजेक्ट
लगाया जा रहा है, जो कि 2005 तो 2005 तो लगाया जा रहा है, पर फाइनली इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ कि पटना टू रांची ਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है 60 किलोमीटर घटा देगा, रिड्यूस कर देगा। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं कहेंगे, अनाउंसमेंट कहेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी और होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा मिलके टॉय कैथॉन 2021 लॉन्च किया गया है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजीनियस टॉयज ऑन डिफेंस एंड कल्चर फॉर किड्स। बच्चों के लिए इस तरीके के टॉयज बनाए जाएंगे कल्चर दे, जिस दे विच कल्चर नूं दर्शाया जाएगा इंडिया दे, या फिर इंडिया के डिफेंस सैक्टर नूं दर्शाया जाएगा। ठीक है, टॉय कैथॉन 2021 किन्ना ने शुरू किया है? डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रमेश पोखरियाल निशंक, WCD मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी और होम मिनिस्टर अमित शाह। इस दे नाल इन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंपोर्टेंट बन गई, काफ़ी बार आप डिस्कस की हुई ने, इस करके इत्थे रिपीट नहीं करांगे। नैक्सट है उजाला और SLMP, ये दो स्कीम्स ने किहड़े साल दे विच शुरू कीतियां गईयां सी? डायरैक्टली आंसर बनेगा 2015 2015 दे विच शुरू कीतियां गईयां सी। न्यूज़ दे विच ने क्योंकि 5 साल पूरे कीते ने, 5 साल इन्हां ने पूरे कीते ने। बेसिकली उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। SLNP LED स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, ये दो इंपोर्टेंट स्कीम्स ने 5 जनवरी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉन्च ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 5 ਸਾਲ पूरे ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਇਹ ਬਚਤ ਲੈਂਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। नेक्स्ट है फोनपे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसने टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान अनाउंस किए ने अपनी एप्लीकेशन के उत्ते। किस नाल पार्टनरशिप की है? इसने पार्टनरशिप की ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नाल, ICICI लाइफ इंश्योरेंस के नाल एग्रीमेंट साइन किया फोनपे द्वारा। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा दो होर इंपोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं, IRDAI और KVIC। ऑप्शनस दे विचों IRDAI है जी इंश्योरेंस रैगूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 दे विच बनाई गई सी, हैदराबाद दे विच इसका हैडकुआटर है और सुभाष चंद्र कुंतिया इसके हैड ने। इन्हां द्वारा की बनाई गई होम इंश्योरेंस पॉलिसी भारत गृह रक्षा होम इंश्योरेंस, होम के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा भारत गृह रक्षा IRDAI द्वारा। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने हैडकुआटर मुंबई के विच है, विनय कुमार सक्सेना इसके हैड ने। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया ITBP, इंडिया की आर्मड फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, जो कि 24 अक्टूबर 1962 के विच बनाई गई सी। न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है, SS देसवाल इसके हैड ने। फॉर सप्लाई ऑफ 1.2 लाख कॉटन ड्यूरीज एवरी ईयर, हर साल 1.72 लाख कॉटन प्रोवाइड की जाएगी, कॉटन ड्यूरीज किन्हां नूं ITBP नूं KVIC द्वारा। फैक्ट इंपोर्टेंट बनेंगे KVIC दे और ITBP दे। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रीसेंटली लीगलाइज अबोशन नूं लीगलाइज करने वाली केड़ी कंट्री है जिसने रीसेंटली लीगलाइज किया है? तो अपना आंसर होएगा अर्जेंटीना ने की किया, रिसेंटली लीगलाइज कर दिता है अबोशन। पहले इत्थे इलीगल सीगा अबोशन करवाना, हुण इसनूं लीगलाइज कर दिता गया। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा बाकी कंट्रीज़ के रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। तो सब तो पहले USA प्रेजिडेंट जो बिडन 20 जनवरी तो प्रेजिडेंशियल शपथ लै रहे हैं, आप डिस्कस किया है काफ़ी बार। इन्होंने मैरीक गारलैंड नूं अटॉर्नी जनरल नामित किया। इन्हों के अटॉर्नी जनरल कौन होंगे नवें? तो मैरीक गारलैंड होंगे। ठीक है, इस तो इलावा अगर इंडिया की गल करते तो इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन ने? तो के वेणुगोपाल। जापान, इंडिया द्वारा MOC साइन किया गया स्पेसीफाइड स्किल्ड वर्कर MOC की फुल फॉर्म
डिफरेंट डिफरेंट अगर आप गल करते हैं इतने डिस्कस कर लें MOU, एक होंगे MOU, एक होंगे MOC, एक MOA। तीन चीज़ां पूछी जांदियां ने। तो MOU की फुल फॉर्म है मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOC की फुल फॉर्म है मैमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन और MOA की फुल फॉर्म है मैमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तीनों याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगी। तो MOC साइन किया गया स्पैसीफाइड स्किल्ड वर्कर किसदे नाल, जापान दे नाल, यानी कि इंडिया के स्किल्ड वर्करस नूं जापान भेजा जाएगा, जापान भेजा जाएगा 14 स्पैसीफाइड सैक्टर्स के लिए। बेसिकली जापान के डिफरेंट डिफरेंट सैक्टर्स के काम करने लिए इंडिया के स्किल्ड वर्करस नूं भेजा जाएगा। हालांकि इस अंदर दो कंडीशनस ने इंपोर्टेंट रहनगियां अपने लिए, वैसे एग्जाम परपज़ तो इंपोर्टेंट नहीं रहनगियां, सिंपली दस देना कि एक टैसट होएगा, टैसट क्लीयर करना जरूरी है, स्किल टैसट, और दूसरा इत्थे कंडीशन है कि जैपनीज़ आनी चाहिए, उस परसन नूं जैपनीज़ आनी चाहिए, सिर्फ उसी दे नाल यह जा सकता है। नैक्सट है कतर। कतर रिलेटेड रिसेंटली अगर आप गल करते हैं, आप न्यूज़ डिस्कस की थी कुछ दिन पहले कि GCC का समिट ऑर्गेनाइज होना है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का 41वां समिट है जिहड़ा रियाद सऊदी अरेबिया दे विच ऑर्गेनाइज किया जाना सी। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया। तो GCC ने साइन की सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी डील अबाउट कतर। इस न्यूज़ में भी हल्का डिस्कस करते हैं, इंपोर्टेंट रहेगा कि जी GCC है, GCC दे विच 6 मैंबर कंट्रीज़ ने आप डिस्कस किया सी। ठीक है, सऊदी अरेबिया दे विच हैडकुआटर है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का। ठीक है, 1981 दे विच यह ग्रुप बनाया गया सी। ठीक है, इस दे विच जी 6 कंट्रीज़ ने, 5 कंट्रीज़ और 6वीं कंट्री है कतर। तो इन्हां 5 कंट्रीज़ ने कुछ टाइम पहले कतर के उत्ते बैन लगा दिता सी, प्रोहिबिशन करती सी कि कतर किसी भी कंट्री के नाल ना ही लैंड के तौर पर, ना ही एयर के तौर पर, या ना ही मैरीन के तौर पर किसी भी तरीके की डील कर सकेगा। ठीक है, तो इस करके कतर नूं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा सी, पर जिहड़ा हुण समिट ऑर्गेनाइज किया गया, इस समिट दे विच कतर के उत्ते जिहड़ी प्रोहिबिशन सी इसनूं हटा दिता गया, इसनूं हटा दिता गया, याद रखांगे। तो अपने लिए सिंपली ये भी क्वेश्चन डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है कि सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी डील किहड़ी कंट्री के रिलेटेड है, कतर के रिलेटेड है और किहड़े ग्रुप के रिलेटेड है, तो GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के रिलेटेड है। किनवां समिट सी, 41वां समिट सी, रियाद सऊदी अरेबिया दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। नैक्सट है यूनीसैफ। यूनीसैफ की एक रिपोर्ट आई है, यूनीसैफ रिलेटेड फैक्ट आप कल डिस्कस किए हैं, अज नहीं डिस्कस करांगे। इंडिया पहले नंबर पर है इन द टर्म्स ऑफ बर्थ ऑफ बेबीज़ ऑन 1 जनवरी 2021 कि 1 जनवरी 2021 नूं इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा बच्चे पैदा हुए सी। ठीक है, कि किन्ने बच्चे पैदा हुए सी, तकरीबन 59,995, और दूसरे नंबर पर चाइना सी। नेक्स्ट है एशियन वाटर बर्ड सेंसस कमेंसिस इन विच स्टेट और UT। एशियन वाटर बर्ड सेंसिस किहड़ी स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज किए गए या UT दे विच ऑर्गेनाइज किए गए, तो इसनूं आंध्र प्रदेश दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, थोड़ी डिटेल डिस्कस करांगे इस न्यूज़ की। इस तो इलावा होर इंपोर्टेंट न्यूज़ ने ऑप्शंस रिलेटेड और भी डिस्कस करांगे। सब तो पहले शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश 2 इंपोर्टेंट न्यूज़ ने। एशियन वाटर बर्ड सेंसिस कंडक्ट किया गया आंध्र प्रदेश की कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच, कोलेरू लेक बर्ड सेंचुरी दे विच और कृष्णा सेंचुरी दे विच। ठीक है, किन्ना द्वारा किया गया, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी द्वारा अंडर इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसिस। इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसिस के अंडर बॉम्बे नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी ने इसनूं कंडक्ट किया। ठीक है, तो एक इंपोर्टेंट चीज़ रहेगी, क्वेश्चन स्टैटिक तो भी पूछे जाते हैं इत्थे कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे है, डायरैक्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक कित्थे है, तो वह भी आंध्र प्रदेश, और कोलेरू लेक बर्ड सेंचुरी कित्थे है, तो उसका आंसर भी आंध्र प्रदेश। इस तो इलावा कृष्णा सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश के पाई जाती है। इस तो इलावा एक स्कीम आप डिस्कस की हुई है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम है जी, ये 2019 के आप डिस्कस की थी कि लॉन्च की गई सी। ठीक है, इसनूं लॉन्च किया गया 4 स्टेट्स के सब तो पहले, और टारगेट रखा गया कि मार्च 2021 तक पूरी कंट्री नूं इस दे अंडर जोड़ दिता जाएगा। ठीक है, तो इसके जोड़े कुछ रिफॉर्म्स ने, इसके लिए कुछ टारगेट्स होंगे ने। हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स इस जुड़ चुके हैं, तकरीबन 28 स्टेट्स और UTs इस जुड़ चुकी ने। तो
पर आंध्र प्रदेश और MP मध्य प्रदेश ये पहली ऐसी दो स्टेट्स बनिया ने जिन्होंने कंप्लीटली वन नेशन वन राशन कार्ड के रिफॉर्म्स ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। इसी ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਵੀ और यूनियन लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म्स ਨੂੰ भी अडॉप्ट करने वाली पहली दो स्टेट्स ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा 26th एडिशन अनाउंस किया गया कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल का वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा याद रखांगे। और इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल का 51वां एडिशन है गोवा के ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये भी याद रखांगे। केरला डिक्लेयर्स बर्ड फ्लू, केरला ने बर्ड फ्लू ਨੂੰ स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर किया है और स्टेट एमरजेंसी अनाउंस की है। ठीक है जी, इस फैसटिवल के रिलेटेड काफ़ी फैक्ट आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओपनिंग मूवी क्लोजिंग मूवी, इस तो इलावा ज्यूरी रिलेटेड भी डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नैशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी का। डायरैक्टली याद रखांगे नैशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी का फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा कित्थे रखा गया तो दिल्ली दे विच। लद्दाख खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपीयनशिप, खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपीयनशिप है जिहड़ी इसनूं कित्थे शुरू किया गया, कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया तो चितकन कारगिल लद्दाख दे विच। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ने जिहड़ियां कित्थे ऑर्गेनाइज किए जाणगियां गुलमर्ग दे विच। किनवां एडिशन है? सैकेंड एडिशन। गुलमर्ग कित्थे है? जम्मू एंड कश्मीर दे विच। और खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपीयनशिप एक कारगिल लद्दाख दे कारगिल दे विच ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है जी, याद रखांगे। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप थोड़ा सैशन थोड़ा लंबा चला गया, आई होप तुहानूं पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।